Okay. हाँ, right. Okay. Okay. So today we are going to start this chapter, which is the force and pressure. Right. Force and pressure we are going to start. ठीक है. What is happening? Okay. I hope everybody can see the page. Visible है? Chapter number 8, force and pressure. Okay. Okay, great. Before that, let's have a quick revision of the last chapter, which is the coal and petroleum. Okay, right? Camera on, everybody. See, we have discussed coal and petroleum in the last few lectures, and these are the natural resources, actually. Natural resources. There are two types of natural resources, and those are what are these two types of natural resources? मयूष कम ऑन कैमरा ऑन करो देन यू कैन टॉक पहले कैमरा ऑन करना है ओके व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मयूरेश Exhaustible natural resources and inexhaustible natural resources. राइट एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज करेक्ट ओके तो विच आर द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एग्जांपल्स मयूरेश विच Water, petrol, oil, coal. these are the exhaustible natural Ex- resources correct and and what are exhaust the is correct and हाँ sunlight, sunlight air. air. Right. These are the inexhaustible natural resources. Right, correct. Now, how the what are the different types of exhaustible natural resources? Swanandi, different types of exhaustible natural resources. The coal, petroleum, natural gas, minerals, forest, wildlife, etc. These are the exhaustible natural resources. Right. Okay. Now we are going to particularly discuss about coal, petroleum, and natural gas. Right? Okay. What is coal? Coal क्या होता है? It is a hard black combustible fuel. राइट फाउंड इन डीप कोल माइंस है कि नहीं बराबर है और वो जलता कैसे है गौरी हाउ द कोल बर्न्स क्या बनता है उससे अगर कोल इफ कोल बर्न्स बनेगा क्या उससे क्या बनेगा गौरी है वेर इज गौरी प्लीज कैमरा बंद है सबका ठीक है ओके क्या बनता है कोल बर्न होने से बताओ मयूरेश बोलो CO2 gas and heat. राइट कार्बन डाइऑक्साइड बनता है गैस और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हीट बनती है करेक्ट वेरी गुड तो व्हाट इज पेट्रोलियम पेट्रोलियम क्या है स्वानंदी व्हाट इज पेट्रोलियम Uh, it,
It is a dark colored, thick crude oil having an unpleasant odor. Correct. Okay. And what is natural gas? Gauri, what is natural gas? It's mainly consists of methane. मीथेन, बराबर है। 95% उसमें मीथेन होता है। ठीक है। ओके। कहाँ पर मिलता है ये नेचुरल गैस? गौरी, वेयर डू यू ऑब्टेन द नेचुरल गैस? म्यूट है, यू आर ऑन म्यूट गौरी। तो आनंदी बोलो, कहाँ पर मिलता है ये नेचुरल गैस? Sir, natural gas is found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra, Krishna Godavari Delta. अच्छा, वो रीजन है, बराबर है। बट ये इन रीजन में कहाँ पर मिलता है? जमीन के अंदर मिलता है ना, हाँ. डीप इन द अर्थ क्रस्ट, or exactly Yes. that is found above the or along with the crude oil or individually also, वो सेपरेटली भी मिल सकता है, along with the crude oil भी मिलता है, बराबर है। ठीक है। Yes. if we compress the natural gas then it becomes compressed natural gas, बराबर है। ओके, सीएनजी बोलते हैं हम उसको। और ये जो नेचुरल गैस है उसका यूज कहाँ कहाँ पर हो रहा है? पावर जनरेशन एंड द फ्यूल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल्स, इन दो चीजों में उसका यूज हो रहा है, बराबर है। राइट। यूजेस ऑफ कोल क्या क्या है? व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल? मयूरेश, यूजेस ऑफ कोल क्या क्या है? Sir, to produce electricity हम्म? in thermal power plants. ओके, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन एज अ फ्यूल इन वेरियस थर्मल पावर प्लांट्स, बराबर है। इट इज यूज टू प्रोड्यूस कोक, कोल टार, कोल गैस, बराबर है कि नहीं? करेक्ट। टू कुक द फूड। कोल से कोक कैसे बनता है? कोल से कोक कैसे बनता है? हाउ द कोक इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कोल? ये सारे सवाल एग्जाम में आते हैं, ऐसे सवाल। ठीक है। कैसे बनता है कोक मयूरेश, कोल से? Sir, when coal is heated, absence of air, then coke is formed. राइट, यू आर राइट, करेक्ट। ओके। इन एब्सेंस ऑफ एयर, कोल को हमें क्या करना है? हीट करना है। ठीक है। नाउ व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पेट्रोलियम? स्वानंदी, फटक से बताना है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है पेट्रोलियम के? क्विकली। Petrol, kerosene, diesel, lubricating gas, paraffin wax, etc. अच्छा, ओके, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, और पैराफिन वैक्स के बाद बिट्यूमेन भी है। ठीक है। ओके। हाँ, bitumen. व्हाट इज द यूज ऑफ बिट्यूमेन? गौरी, व्हाट इज द यूज ऑफ बिट्यूमेन? Paints road surfacing. राइट, पेंट्स में और रोड सरफेसिंग में उसका यूज होता है। ओके, वेरी गुड। तो कोल से हम क्या क्या बना सकते हैं? कोक बना लिया हमने। व्हाट इज कोक? कोक का नेचर कैसे होता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द कोक? दिखता कैसे है? बोलो मयूरेश। Tough, porous, and black colored. राइट, टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस है। ओके, एंड इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एज अ फ्यूल। तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में एज अ फ्यूल यूज होता है कोक। ओके, क्योंकि उसका जो हीट देने का कैपेसिटी है कोक का, वो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए यूज होता है वहां पर। देन कोल्टार, कोल्टार भी कोल से बनता है। व्हाट इज कोल्टार? कोल्टार क्या है स्वानंदी? It is a thick black liquid having an unpleasant smell. राइट, That's कहाँ पर यूज होता है उसका? मैन्युफैक्चरिंग in वेरियस। making roads. राइट,
हाँ, मेकिंग रोड्स में होता है उसका यूज, बराबर है। यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। बहुत सारे सब्सटेंसेस बनाने के लिए उसका एज स्टार्टिंग मटेरियल यूज हो सकता है, ठीक है। ओके। आगे है कोल गैस। करेक्ट। कोल गैस क्या होता है मयूरेश, बताओ, कल हमने देखा था। तो आनंदी, कोल गैस कल हमने डिस्कस किया था। It is a gaseous fuel which is obtained during the processing of coal in the absence of oxygen. हम्म। क्या क्या है मिक्सचर, क्या क्या उसका, क्या क्या होता है उसमें? Hydrogen, hydrogen, फिर बोलो। hydrogen and monoxide. ठीक है, इतना सफिशिएंट नहीं है। हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और मीथेन होता है। इन तीनों का मिक्सचर होता है वो, बराबर है। राइट। और उसका जो यूज है वो एज ए फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्रीज में? जो जो इंडस्ट्रीज कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के आसपास है। ओके, कोल प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसके आसपास इसका यूज होता है एज ए फ्यूल। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिफिकल्ट है, तो उधर वाले पास वाले एरिया में ही वो एज ए फ्यूल यूज होगा। ठीक है। तो ये इतना सा ये चैप्टर है, ठीक है। करेक्ट। देन लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर Sir, विच इज, हाँ बोलो बेटा। तो आनंद, sir, is tomorrow test on this chapter? टुमारो इज सैटरडे, राइट? Yes, sir. यस, तो इस चैप्टर के ऊपर टेस्ट होगा कल, ठीक है। और जो हमने पढ़ा है वो जो चैप्टर है, अगर आपके पास बुक है आर्यंत का, तो इन डिटेल में वो चैप्टर पढ़ने, इन डिटेल। और जो हमने पढ़ा है सिर्फ उसी पर क्वेश्चन नहीं होंगे, जो हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन टाइप भी क्वेश्चन होंगे इसके। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू रीड एंड थिंक। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन होंगे। इतना सीधे और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कम ही आएंगे, राइट। चलो ठीक है। So let's start the new chapter, which is the force and pressure, chapter number 8. Chapter 8, force and pressure. Force and pressure. नया चैप्टर अपना, ठीक है। देखो, इसको ठीक से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, राइट। मुझे बताओ, फोर्स जो है, फोर्स, फोर्स क्या होता है? इट इज द पावर, है कि ना, जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। और ये ऐसा पावर है, जब भी दो चीजें, दो या दो से ज्यादा चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, तभी दिस फॉर्म ऑफ पावर इज अप्लाइड। ठीक है। ओके। फोर्स और प्रेशर, नाउ फोर्स एंड प्रेशर आर रिलेटेड। वो कैसे, हम वो भी देख लेंगे। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमारी डेली लाइफ में अ बैट्समैन हिट्स द बॉल बाय अप्लाइंग अ फोर्स। क्या कर रहा है बैट्समैन जो है? hitting a ball by applying a force। ठीक है, बैट्समैन क्या कर रहा है? हिट कर रहा है बॉल को बाय अप्लाइंग फोर्स एंड चेंजेस द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉल। बराबर है। बैट्समैन क्या करेगा? बॉल को हिट कर रहा है, तो बॉल को जब वो हिट कर रहा है, क्या कर रहा है? उसका स्पीड चेंज कर रहा है और उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, राइट। सिमिलरली, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स is such a power that it can change the speed as well as the direction of the object। ठीक है, ध्यान रखना ये दो बातें, स्पीड चेंज करेगा और डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है। ओके। नाउ हॉकी प्लेयर, देखो हॉकी प्लेयर क्या करता है? चेंजेस द डायरेक्शन मूविंग ऑफ अ मूविंग बॉल विथ अ फ्लिक ऑफ स्टिक। फ्लिक। ओके।
ऑफ स्टिक से क्या करेगा, वो भी उसकी डायरेक्शन और स्पीड चेंज करता है बॉल की। फोर्स इज डिसाइडिंग फैक्टर which helps an object change its position and the direction of the motion। तो फोर्स ऐसा फैक्टर है जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और मोशन चेंज करता है। फोर्स कैसा फैक्टर हुआ, इसका कंक्लूजन क्या है? फोर्स इज अ फैक्टर, फोर्स is a factor which changes direction and the speed of an object। किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन और स्पीड चेंज करेगा, फोर्स ऐसा फैक्टर है। देखो आगे देखो, नेक्स्ट हम इस चैप्टर में देखो वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, जिससे अलग अलग टाइप के इफेक्ट जो है वो बनेंगे। इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एज वेल एज एरिया ऑन विच इट इज अप्लाइड। अब ये जो फोर्स हम अप्लाई करने वाले हैं वो किस पर डिपेंड करता है? अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। आप कितना फोर्स लगा रहे हो, ये एक बात जरूरी है, और कितने एरिया पे ये फोर्स लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे आगे कि क्या डिफरेंस है। जैसे कि देखो, देखो आप मान लो अपना ये थंब है, ठीक है, और थंब से हम क्या कर रहे हैं, अगर आपका टेबल है, टेबल पर थंब से क्या करो, प्रेशर लगा, ऐसे थंब से प्रेशर लगाना है, ठीक है। तो ये जो थंब का एरिया है वो ज्यादा है, बराबर है। और अगर हम नेल ले लें, आयरन नेल, और आयरन नेल को या फिर किसी पिन को दबा दें टेबल में, पिन को, तो पिन का जो पॉइंट होता है वो तो बहुत छोटा होता है। उतना ही हम फोर्स लगा रहे हैं जितना हम पहले लगा रहे थे सिर्फ थंब से। उतना ही प्रेशर अगर हम उस पिन पे लगा दें तो पिन विल पियर्स इनटू द टेबल। तो पिन क्या करेगी, टेबल में पियर्स कर जाएगी। हमारा थंब पियर्स नहीं करेगा टेबल में, थंब नहीं चला जाएगा अंदर, लेकिन पिन चला जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल, इसमें क्या फर्क है एग्जैक्टली, व्हाट इज द डिफरेंस? सिर्फ थंब लगाकर प्रेशर करना, फोर्स लगाना, और पिन लेकर फोर्स लगाना, क्या फर्क है दोनों में, क्या डिफरेंस लगता है आपको? क्या डिफरेंस है गौरी? because of surface area. मयूरेश कैमरा ऑन करो बेटा पहले, कैमरा बंद करके नहीं बोलना है। हाँ बोलो मयूरेश। बोलो। Because of surface. बिकॉज ऑफ द एरिया। इन केस ऑफ पिन द एरिया इज वेरी स्मॉल। तो पिन क्या करेगा, बहुत सारा फोर्स ऑन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एरिया पे लग रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स। अगर बहुत ज्यादा फोर्स स्मॉल पोर्शन ऑफ एरिया में लगेगा देन इट विल पियर्स इनटू दैट ऑब्जेक्ट, तो अंदर चला जाएगा वो। और उतना ही फोर्स अगर हम यहां पर लगा रहे हैं, नाउ दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ द थंब इट इज लार्ज, इट विल नॉट पियर्स इनटू द टेबल, वो उसके अंदर नहीं चला जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इफ वी आर अप्लाइंग द इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन अ स्मॉल area compared to a large area, then that object can pierce into the object on which the force is being applied। इसका मतलब ये होता है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स हम ज्यादा एरिया पे और कम एरिया पे लगा रहे हैं, तो जिस केस में हम कम एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, उस केस में वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इट विल पियर्स इनटू द ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वहां पर वो ऑब्जेक्ट अंदर घुसने के चांस है, ठीक है। तो दैट्स हाउ फोर्स वर्क्स। तो फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज रेफर्ड एज अ प्रेशर। तो प्रेशर क्या है, देखो प्रेशर क्या है, क्या बताइए डेफिनेशन प्रेशर की, बोलो स्वानंदी, क्या है डेफिनेशन प्रेशर की? इट इज द फोर्स applied per
यूनिट एरिया। क्या मतलब है इसका? इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पर यफ क्या है? यफ क्या है यहाँ पर? फोर्स है। ए क्या है? एरिया है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है देखो, मान लो अ, अभी एयर है, एटमॉस्फेयर है, तो एयर का प्रेशर जो है, अभी हमारे घर में जो हर एक रूम में एयर है ना, और होम इज फुल ऑफ एयर, तो उस एयर का प्रेशर कुछ ना कुछ हमारे घर में जो ग्राउंड है वहां पर गिरता होगा फ्लोर पे, है कि नहीं? तो फ्लोर जो है वो बड़ा है। फ्लोर कितना है? बड़ा है, राइट। वो जो प्रेशर आ रहा है एटमॉस्फेयर का ऑन द फ्लोर, इफ वी कैलकुलेट दैट फोर्स ऑफ द एयर ऑन द फ्लोर पर यूनिट एरिया, ये पर यूनिट एरिया क्या होता है? जैसे कि देखो, इधर देखो, मान लो ये एरिया है पूरा आपके घर का, और ये एरिया मान लो इतना है, कितना है? मान लो ये 100 स्क्वायर मीटर है। कितना एरिया है? 100 स्क्वायर मीटर है। तो 100 स्क्वायर मीटर में से अगर हम एक छोटा सा पोर्शन जो कि 1 स्क्वायर मीटर है, ये कितना एरिया है? 1 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर क्यों? लेंथ 1 स्क्वायर एंड ब्रेड्थ 1 स्क्वायर। ओके, इसलिए इसको क्या बोला है? स्क्वायर। राइट, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर। आपको पता है ना, चौरस म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये. तो त्या पर्टिक्युलर एरियावरती जेवढा फोर्स अप्लाय होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। पर यूनिट एरियावरती किती फोर्स अप्लाय होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। ठीक है। फोर्स एंड प्रेशर में ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। नाउ शायद आप लोगों को ये जो है, क्या बोलते हैं उसे, इनका यूनिट पता होगा। फोर्स का यूनिट पता है आप लोगों को? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? किसको पता है? सेवंथ में पढ़ा होगा होगा वगैरह। तो इन दैट केस, सी, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या है? न्यूटन, द ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन। ये फोर्स का यूनिट है। ठीक है। उसके बाद एरिया भी है, बराबर है। एरिया एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। स्पेलिंग शायद बराबर है। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ओके, लांबी गुणिले रुंदी म्हणतो आपण, बरोबर आहे. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? मयूरेश, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, सेंटीमीटर। बराबर है, मीटर क्यों, सेंटीमीटर है। ठीक है। तो ब्रेथ का क्या है फिर यूनिट? व्हाट? ब्रेथ इसका आदित्य, ब्रेथ का यूनिट क्या है? लेंथ का मीटर है, ब्रेथ का क्या है? कैमरा ऑन करो बेटा, कैमरा ऑन रखना है। ब्रेथ का क्या यूनिट है? सेम है, वो भी तो डिस्टेंस ही है। ओके, सेम ही है, सेम ही होता है। तो इक्वल टू क्या होगा? मीटर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर होगा। राइट, आ रहा है समझ में? ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, फिर प्रेशर का यूनिट क्या होगा इस केस में? ऊपर नहीं जाएगा शायद। ठीक है, प्रेशर का यूनिट क्या होगा फिर? प्रेशर भी इक्वल टू, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, न्यूटन के लिए एन, और एरिया का यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों सेम है। ये प्रेशर का यूनिट है, ध्यान रखना। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा।
समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है क्या? मयूरेश, आ रहा है स्वाना, सर। आदित्य, समझते का? अरे कैमरे का बंद है तुझा, उठला नाही का तू अजून झोपेतून? आदित्य, उठलोय सर, बॅकग्राऊंड. ओके, ठीक है, चलो देखो इधर, नेक्स्ट विल कंटिन्यू फर्दर। इधर देखो, फोर्स। फोर्स क्या है? अ पुश और अ पुल। ठीक है। फोर्स दो टाइप से लगा सकते हैं हम, या तो उसको पुश करेंगे या फिर उसको पुल करेंगे। दोनों क्या है? फोर्स है। एंड इन ऑर्डर टू मूव एन ऑब्जेक्ट, इट हैज ईदर टू बी पुश्ड और पुल्ड। किसी ऑब्जेक्ट को अगर मूव करना है तो हमें क्या करना होगा? या तो उसको पुश करना होगा या फिर उसको पुल करना होगा। बराबर है सर? हाँ बराबर है बेटा। एम मीन्स मीटर। एम का मतलब मीटर होता है। करेक्ट है। ओके देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराना है तो हमें उसको या तो पुश करना होगा या फिर पुल करना होगा। पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। तो फोर्स क्या है? पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। पुश, अरे 100, पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, वही क्या है? फोर्स है। ठीक है, ओके, चलो आगे। ये हो गया, ठीक है। इधर देखो, पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट देखो, thus any object in motion due to application of force। फोर्स, हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों होगा? ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए वो मोशन में होगा। ठीक है। डायरेक्शन इन विच बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है? कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है? ओके, वही क्या है? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है। देखो अलग अलग टर्म्स है, फोर्स की कौन सी डेफिनेशन प्रिफर करनी है? यही बेटा, अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। वो तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को। वैसे भी आप लिख सकते हो, तो बेटर टू यूज द टर्म्स यूज इन द बुक। बुक में जो दिया है वही यूज करना बेहतर है। ठीक है। आगे देखो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता चल गया, इन विच बॉडी इज बीइंग पुश्ड और पुल्ड, वही क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। ठीक है। आगे, कौन कौन से एक्शन है जिसमें ये फोर्स अप्लाई होता है? किकिंग, किकिंग अ बॉल, opening, shutting, lifting, hitting, all these actions are happening because of the force, or their force is being applied in all these actions। किक करेंगे, कुछ ओपन आप कर रहे हो, हाँ डब्बे का ढक्कन आप ओपन कर रहे हो, शट कर रहे हो, है ना? शट यानी क्या? शटर नीचे कर रहे हो दुकान का, या फिर लिफ्ट कर रहे हो उसी को, शटर को, है कि नहीं? या फिर हिट कर रहे हो किसी चीज को, है ना? व्हेन यू आर हिटिंग द नेल इनटू द वॉल। ठीक है। तो वो क्या कर रहे हो आप? फोर्स अप्लाई कर रहे हो, राइट? ऑल द एग्जांपल्स ऑफ पुश और पुल, ये सारे एग्जांपल्स हैं कैसे? पुश एंड पुल के। नाउ एक्शंस यूजुअली रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, राइट? दीज एक्शंस रिजल्ट इन द some kind of change in the state of motion of the object, in the state of motion of an object। what is the state of motion of an object? state of motion क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन एंड द डायरेक्शन। ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, वो है स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है? उसका पोजीशन एंड डायरेक्शन। इसको ध्यान में रखना। इसमें क्या आता है? State of the motion of an object consists
मोशन, उसका मोशन, स्टेट ऑफ द मोशन दैट इज पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लस उसका डायरेक्शन। ये दो चीजें आती है इसमें, किसमें? स्टेट ऑफ मोशन। ये दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी? पोजिशन एंड डायरेक्शन। जब आप बोल रहे हो व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये वो इस पोजिशन पे है एंड मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको इस तरीके से डिस्क्राइब करना चाहिए। ठीक है, कि एक बस है, इट इज इट्स पोजिशन इज, द बस इज एट दिस पर्टिकुलर प्लेस नाउ एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ पुणे। ओके, तो वो हो गया उसका स्टेट ऑफ द मोशन। ठीक है, ये दो चीजें होनी चाहिए उसमें, पोजिशन एक्सप्लेन होना चाहिए और डायरेक्शन एक्सप्लेन होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ द मोशन। यहाँ पर देखो, दो फ्रेंड है, वन इज पुशिंग एंड द अदर इज पुलिंग द बॉक्स विथ अ रोप। ठीक है, ये पुश और पुल दोनों का एग्जांपल है। ये क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर जो फ्रेंड है, दिस फ्रेंड, व्हाट ही इज डूइंग, पुशिंग और पुलिंग। ये वाला फ्रेंड क्या कर रहा है गौरी? पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? ये पुलिंग। वाला फ्रेंड गौरी, विच साइड सर? ये वाला फ्रेंड क्या कर रहा है? पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? पुलिंग। पुल। पुल कर रहा है, राइट। ओके, और दूसरा जो फ्रेंड है वो क्या कर रहा है? ये पुश कर रहा है। पुश। दूसरा वाला जो है वो पुश कर रहा है, ये जो है ये वाला फ्रेंड, ही इज पुशिंग एंड ही इज पुलिंग। ओके, पुश एंड पुल। जब भी आप किसी मॉल में एंटर करते हो तो वहां पर लिखा हुआ होता है, या तो पुश करो या फिर पुल करो। ठीक है, राइट। चलो आगे चलते हैं, इसको ऊपर कैसे ले जा रही। इधर 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 देखो, फोर्स इज ड्यू टू एन इंटरेक्शन। देखो, फोर्स कब अप्लाई हो रहा है? कि जहां पर इंटरेक्शन होता है, जहां पर कांटेक्ट होता है, वहीं पर फोर्स अप्लाई होता है। क्या मतलब है इसका? देखो, अभी आप कोई आपके दोनों दोस्त, मान लो स्वानंदी और गौरी है, ठीक है, दोनों फ्रेंड हैं। ठीक है, अगर स्वानंदी गौरी को पुल करना चाहती है उसकी तरफ, उसको अगर मूव कराना है गौरी को, तो उसको क्या करेगी, उसको पकड़ के उसका हाथ उसको वो खींचेगी। दैट मीन शी इज पुलिंग गौरी टुवर्ड्स हरसेल्फ, बराबर है। या फिर उसको अगर उसको दूर भेजना है, दूर धकेलना है, तो उसको वो पुश करेगी अवे फ्रॉम हर। ठीक है, तो इन दोनों ही केस में स्वानंदी क्या कर रही है, उसे गौरी को टच कर रही है। दैट मीन्स बोथ गौरी एंड स्वानंदी दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। अगर स्वानंदी गौरी को टच ही नहीं करेगी, दैट मीन्स देयर इज नो इंटरेक्शन, इंटरेक्शन इज नॉट हैपनिंग ओवर देयर। अगर इंटरेक्शन ही नहीं होगा और स्वानंदी सिर्फ बोलेगी, ठीक है, कि गौरी अभी दूर हटेगी, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, गौरी को पुश करना पड़ेगा। ठीक है, राइट। ओके, अगर फ्रेंड है तो बोलेगी तो हट जाएगी, वो बात अलग है। या फिर किसी और चीज का, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई टेबल है, टेबल को अगर आप बोलोगे हाँ यहाँ से दूर हो जाओ, नहीं होगा। मेरे पास आ जाओ, नहीं आएगा, है ना? बिकॉज टेबल कांट लिसन टू यू, नॉन लिविंग थिंग, है कि नहीं? तो टेबल को अगर मूव कराना है तो क्या करना होगा, उसके साथ इंटरेक्शन करना होगा। एंड इंटरेक्शन में क्या करना है, या तो पुश करना होगा या फिर पुल करना होगा। दैट मीन्स whenever you want to apply a force, interaction is must, interaction is a must। ओके, ध्यान रखना। Force between the objects is caused by an interaction of okay, force between the objects is caused by an interaction of one object with another object। दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होना जरूरी है। इफ देर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, देन नो फोर्स कैन शो इट्स इफेक्ट। कोई भी फोर्स अपना इफेक्ट नहीं दिखा सकता। ये बात अलग है कि कुछ ऐसे फोर्स हैं जिनको इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, विदाउट टचिंग वो फोर्स काम कर देते हैं। आपको पता है ऐसे कुछ फोर्स, बता सकते हो आप लोग, कि जिनमें इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है? डू यू नो सच अ फोर्स, सच अ फोर्स? डू यू नो? हाँ मैं रिस्पॉन्ड बोलो। आवाज आवाज ब्रेक हो रही है बेटा।
ग्रेविटेशन फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे इनविजिबल फोर्सेस हैं। राइट, वो आपको टच नहीं करेंगे, आपको फील नहीं होगा कहीं पर भी। ना वी आर बीइंग पुल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय द कोर ऑफ द अर्थ, है कि नहीं? लेकिन हमें कहीं पर फील नहीं होता कि हाँ अर्थ जो है हमें अपनी तरफ खींच रही है, बट खींच तो रही है। ऐसा कौन, किसने बोला, कौन से साइंटिस्ट ने ये जो डिस्कवरी की ग्रेविटेशनल फोर्स की? कौन से साइंटिस्ट थे वो, ग्रेट साइंटिस्ट? क्या नाम है उनका? कौन है मनीष? सर आइजैक न्यूटन। राइट, आइजैक न्यूटन, है ना? तो वो पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल नीचे गिरा। तो एप्पल तो बहुत सारे लोगों के सामने नीचे गिरा होगा, लेकिन सवाल उन्हीं के मन में आया नीचे ही क्यों गिरा, है कि नहीं? और वही न्यूटन बने। राइट, सो आइजैक न्यूटन द ग्रेट साइंटिस्ट, है कि नहीं? तो उन्होंने ये बताया था। तो फोर्स तो काम कर रहा है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। तो देर इज नो इंटरेक्शन बट फोर्स इज देयर। ठीक है, ऐसे भी कुछ फोर्सेस हैं। ठीक है, राइट। चलो, तो ऑलमोस्ट अपना टाइम जो है ना वो हो रहा है। जितना हमने यहाँ पर लिखा हुआ है आपने शायद, हाँ लिखा, स्क्रीनशॉट निकलवा दो वैसे, अगर नहीं लिखा है तो फटक से। एंड द टाइम इज अबाउट टू ओवर। ठीक है, तो आप लोगों के अगर कोई डाउट्स हैं तो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। कल लेक्चर नहीं होगा, सॉरी, कल टेस्ट है आपका। तो इस लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा कोल एंड पेट्रोलियम का, वो प्रिपरेशन करो आराम से। संडे को आपका प्रेजेंटेशन भी है, तो उसको भी आपका प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन करना है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है गौरी प्रेजेंटेशन के लिए? फिजिकल एंड केमिकल चेंज